नमस्कार, हॉट सीट में आपका स्वागत है। सबसे पहले आप सबका तहे दिल से शुक्रिया, क्योंकि आप सब हमारे कार्यक्रम को ध्यान से देख रहे हैं और सराह रहे हैं। मैं आपको ये भरोसा दिलाना चाहता हूं कि इस प्रोग्राम में हम उन सब न्यूज़ मेकर्स से वो बातें निकलवाना चाहते हैं जो कहीं ना कहीं डेली न्यूज़ की प्रक्रिया में खो सी जाती हैं। आज हम मुंबई में हैं और हमारे साथ वो व्यक्ति है हमारी हॉट सीट पर जिसने लगभग 25 वर्ष पहले भारतीय टेलीविजन के इतिहास में बहुत नाम कमाया। आज की तारीख में वही व्यक्ति सबसे बड़ा विवादास्पद व्यक्ति बन के उभरा है। युधिष्ठिर गजेंद्र चौहान हॉट सीट पर हमारे खास मेहमान। Mr. Chauhan, tell me, you have been given this rather important charge of being the chairperson of the Governing Council for Films and Television Institute in Pune. From Satyajit Ray to Mrinal Sen to Mohan Agashe to Gajendra Chauhan. Tell me, do you believe there is continuity in all these big names that I have given to you? क्या आपको लगता है कि कंटिन्यूटी है इन सब लोगों में जिनको चुना गया है एफटीआई का चेयरमैन बनने के लिए, चेयरपर्सन बनने के लिए? देखिए, चेयरपर्सन चुनने का जो अधिकार क्षेत्र है वो सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के पास है. दे हैव टू डिसाइड. सो इट्स अ डिसीजन ऑफ द आईएनबी मिनिस्ट्री टू पुट मी देयर. They must have seen some capabilities, my work also, my style of working, my efficiency. So on the basis of that, it's not the name actually, it's the work on the basis of what they have decided. So you're actually saying that you are convinced that you belong, all these names that I have taken. No, I may not belong, you believe that you belong in that category. No, I may not be belonging to their cadre, but depending on my style of working, my efficiency, which I've spent in film industry and time I've spent with the Association of the Film Industry as an administrator. So I feel I am fit for this job. Do you believe that you fit in that category? Yes, I do believe. Moreover, I have a long experience of working in cinema and television in India. And moreover, I have got administrative qualities also. So my job as a chairperson will be administrator and management in FTI plus giving a vision to the next generation. तो फिर उसमें गजेंद्र चौहान को लाने की क्या जरूरत थी? वो तो आप किसी भी MBA को ले आइए. I mean, if you say that you're like a CEO, then what is it that you're going to provide? No. See, the thing is, if you are just an administrator, अगर आप सिर्फ मैनेजर हैं मतलब आप. No. मैंने आपसे ये नहीं कहा. मैंने तीन चीजें कही आपसे. एक एडमिनिस्ट्रेटर है, एक मैनेजमेंट है और एक विजन है. विजन कौन दे पाएगा? ऐसा आदमी दे पाएगा जो सिनेमा से कनेक्टेड होगा. मैं सिनेमा से कनेक्टेड हूँ, इसके लिए मैं वो विजन देने के लिए काबिल हूं. नहीं, but now that's an important point you make. Yeah. Are you saying that you are in this position which has been offered to you because of your association with cinema, or are you there because of your association with the BJP that you have been a member of since 2004? Both. Because see, I tell you, when the government changes, जब भी सरकारें बदलती हैं तो सरकार के अधिकार क्षेत्र में बहुत सारी पोस्ट होती हैं. आज से पहले कांग्रेस भी ये करती रही है. कांग्रेस ने भी जब ऐसी पोस्ट आई हैं चेयरमैनशिप की, तो जहाँ जहाँ भी पोस्ट होती है उन्होंने अपने लोग लगाए हैं. आज बीजेपी आई है तो बीजेपी से जो एसोसिएटेड लोग हैं और वो पर्टिकुलर प्रोफेशन से हैं, मान लीजिए कोई वकील है, कोई डॉक्टर है, कोई आर्मी से है. मैं एक सिनेमा मैन हूँ, सिनेमा से जुड़ा हुआ हूँ, टीवी से जुड़ा हुआ हूँ. तो सिनेमा और टीवी से जुड़ी हुई कोई भी पोस्ट होगी तो उसमें कहीं ना कहीं मैं प्रोबेबल्स में होऊंगा. ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो बीजेपी से जुड़े हुए हैं और सिनेमा से भी है, लेकिन उन सबके बीच मुझे चुन के लाना ये अधिकार क्षेत्र है इंफॉर्मेशन. बड़ी मजेदार बात है कि you are saying that you are there because of both, because of your association with the BJP, definitely, and your association with cinema. Though your critics say that there is no association that you have with cinema, your critics say that you have absolutely no credible work which you have done in cinema. And I was looking at your filmography, at least what is available on the net, and I was just looking at some of, though you've done quite a lot of TV serials, I must say. लेकिन इसमें कहीं भी ये आपकी 14 फिल्में आपकी फिल्मोग्राफी से मैंने देखी. Where exactly is this great cinematic contribution that Gajendra Chauhan says he has made to Indian cinema because of which he has been given this job? अगर मैं सिनेमा से जुड़ा नहीं होता, मैं किसी और प्रोफेशन में होता, क्या मुझे एफटीआई का चेयरपर्सन बनाते? मैं सिनेमा से जुड़ा हुआ, मैं आई एम ए सिनेमा मैन, आई एम ए बीजेपी मैन ऑल्सो. बीजेपी को जब पावर में आई तो उसे यह अधिकार हुआ कि मुझे कोई ऐसी पोस्ट अगर देंगी तो जिसमें मैं स्पेशलाइज हूँ, जिस डिपार्टमेंट को मैं जानता हूँ, जिस मीडिया को मैं जानता हूं. अब उनके पास सारे सवाल ये था कि किसको लाएं. तो सिनेमा से जुड़ा हुआ कोई भी प्रोफेशन होगा उसमें मैं प्रोबेबल्स होऊंगा, लेकिन उन प्रोबेबल में भी मेरा नाम ऊपर आना. लेकिन आप क्यों गजेंद्र? श्योर, आई मीन देयर आर मेनी अदर पीपल एज वेल.
किरण खेर जी सांसद हैं, एक्टर हैं, हेमा मालिनी जी सांसद हैं, एक्टर हैं। उन सब लोगों को छोड़ के गजेंद्र चौहान को अगर लाया जाए तो इज इट फॉर बेटरमेंट ऑफ सिनेमा और इज द स्टोरी समवेयर एल्स? दैट्स व्हाट आई लाइक टू नो। सी, बेटरमेंट तो तभी पता चलेगा जब मैं परफॉर्म करूंगा। दूसरा, मुझे क्यों लाया गया? क्योंकि मैं ज्यादा समय दे सकता हूं एफटीआई को अपनी परफॉर्मेंस करने के लिए। आज हेमा जी का नाम आपने लिया, किरण खेर का नाम लिया, बाकी फिल्म वाले जो बीजेपी से जुड़े हुए हैं वो ऑलरेडी बिजी हैं। आप अपने सक्सेसफुल नहीं है, आप जी, आप उतने सक्सेसफुल स्टार नहीं हैं। देखिए, इसलिए आपको एफटीआई का चेयरमैन की पद की भूमिका दी गई है। नहीं, मैं आपको एक बात बोलता हूं कि आई एम नोन टू द वर्ल्ड थ्रू माय वर्क ऑफ आर्ट। You are known as Yudhishthir to the world. Whatever it is, but I am known to the world. You are known as a person who played the part of Yudhishthir in Mahabharata, exactly. the serial which Very came successfully. back 2 decades back. Very successfully. And India may have changed across these 2 decades. देखिए, हिमालय चढ़ने के बाद तो कोई पर्वत बचता ही नहीं है ना। जब इतना बड़ा रोल मैंने जो एक आइडल बन गया दुनिया के लिए वो किया है, तो उसके बाद तो छोटे ही पहाड़ होंगे। उसके बाद मैंने बहुत सारे सीरियल किए हैं। लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा, देखिए आप कह रहे हैं कि आपने इतना सिनेमा से आप जो अपने आप को आप सिनेमा मैन कह रहे हैं आप अपने आप को, बट लेट मी जस्ट पॉइंट आउट क्या कह रहे हैं आप ही के जो साथी हैं जो सिनेमा से ही जुड़े हैं। अदूर गोपालकृष्णन जी, फॉर्मर चेयरमैन, वो क्या कहते हैं? वो कहते हैं कि आपके अपॉइंटमेंट से दरअसल एफटीआई का जो पूरा अस्तित्व है वो अस्तित्व ही खतरे में आ गया है। किस प्रकार से आप कहते हैं सर कि आप सिनेमा के बाशिंदे हैं और इसलिए आपको ये जो है ये पद आपको दिया गया है? नहीं, मैंने आपसे कहा मैं बीजेपी का सदस्य हूं और सिनेमा से जुड़ा हुआ। कहीं ऐसा तो नहीं, दोनों बातें ठीक बात है जी। लेकिन मैं वो जो सिनेमा से आपका जो एसोसिएशन है मैं उसको चैलेंज कर रहा हूं, क्योंकि आप ही के जो साथी हैं वो कह रहे हैं कि आप एक बीजेपी के व्यक्ति हैं, आप एक संघ परिवार के व्यक्ति हैं, सिनेमा आप करते जरूर चले आए होंगे, लेकिन आप अपने आप को जो सिनेमा मैन कह रहे हैं वो आप ही के साथियों को मंजूर नहीं। सिनेमा करने वाला ही सिनेमा मैन कहलाएगा ना। ये डेमोक्रेटिक कंट्री है, हर किसी को अधिकार है अपनी बात रखने का, फ्रीडम ऑफ स्पीच है। उन्होंने बात कही है, मैं उसको डिफाई या डिनाई नहीं कर रहा हूं, ये उनका अधिकार क्षेत्र है कि उन्होंने बात कही। आप जैसे अदूर गोपालकृष्णन जी जैसे व्यक्ति जब ये कहता है कि गजेंद्र चौहान के अपॉइंटमेंट से फिल्म इंस्टीट्यूट का अस्तित्व खतरे में है, नहीं, बट मैं ये क्या मतलब हुआ? नहीं, मैं ये कहना, वो कुछ भी कह सकते हैं, लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि मेरे काम को देखे बगैर अगर कोई भी ये फैसला करेगा कि गजेंद्र चौहान इसके लिए फिट नहीं है तो ये गलत है। तो इतना डर क्यों है गजेंद्र चौहान से? अगर आप कह रहे हैं कि आपके काम को बिना देखे ही लोग जजमेंट कर रहे हैं, तो आपने मुझे न्यूज़ दी है कि मुझसे डर है लोगों को। मैं तो समझ, मैं एक चीज से ये कहते हैं सर कि आपके अपॉइंटमेंट से किसी इंस्टीट्यूट का जो कि सन 61 से चल रहा है, जो उसके अस्तित्व पे खतरा है, तो कुछ तो होगा गजेंद्र चौहान में। ये बैक स्टोरी क्या है, ये समझाइए। नहीं, ये उनकी सोच है, मैं उसमें कोई कमेंट नहीं करना चाहूंगा। वो बहुत सीनियर है, बड़े हैं, लेकिन मैं ये कह सकता हूं कि मैं जब परफॉर्म करना शुरू करूंगा तो इन सब के ओपिनियन बदल के रख दूंगा। दरअसल व्हाट इज द मेन फैक्टर which is being held against you? Main factor being held against you is that आपको ये जगह दी गई है with a vested agenda, that you are there to effectively curb and control the freedom of speech, the liberal values that Indian cinema has been associated with. No, I don't agree there. You deny that? मैं कह रहा हूँ आर्ट जो है किसी भी विचारधारा के अधीन नहीं होता। पहली बात, मैं एज एन आर्टिस्ट जब कहीं परफॉर्म करता हूँ किसी सेट पे, तो मैं किसी विचारधारा को लेके परफॉर्म नहीं करता हूँ। मुझे नहीं पता होता कि प्रोड्यूसर किस विचारधारा का, कैमरामैन किस विचारधारा का, मेरा को एक्टर किस विचारधारा का। तो विचारधारा कभी भी आर्टिस्ट के ऊपर हावी नहीं होती। और मैं ये फिर दावे के साथ कह रहा हूँ, मैं वहां पे अपना काम करने जा रहा हूँ, कोई विचारधारा लागू करने नहीं जा रहा हूँ। लेकिन मेरी अपनी विचारधारा कुछ भी हो सकती है। हर मैं आ रहा हूँ, मैं आपकी विचारधारा पे आ रहा हूँ। नहीं, ऐसा है कि यू आर ट्रीटिंग एफटीआई स्टूडेंट्स एज स्कूल किड्स। एफटीआई इज अ वेरी प्रीमियर इंस्टीट्यूशन ऑफ दिस कंट्री, जहाँ सिनेमा को सिनेमा की तरह अच्छे से पढ़ाया जाता है। These are the students which are not to be taught nationalism. Let me put it on record. इनको कोई सबक सिखाने की जरूरत नहीं है। अगर एफटीआई में 200 स्टूडेंट हैं तो वो 200 स्टूडेंट नहीं है, वो 200 ब्रेन्स हैं। Correct. वो इंडिविजुअल ब्रेन्स हैं। Correct. उनके पास हर तरह की सोच है, उनको इस तरह से मोल्ड करने की जरूरत नहीं है। तो मैं इन बातों से एग्री नहीं। तो आप बिल्कुल डिनाई करते हैं? मैं इस बातों से बिल्कुल एग्री नहीं करता। So will you in your capacity as the FTI chairperson, will you actually pull up these individuals when Mr. Pathak says this, Narendra Pathak says कि सबक सिखाने की जरूरत है? They have made a statement in the press and which has come into the media. Right. What I am saying is, if they will make these kind of statement in the Governance Council, I will not accept it. You will not accept it. So therefore, that's an important point. So you're saying Gajendra Chauhan himself is actually a liberal man? He's a progressive man? Definitely. Because I tell you, I am a first cinema man. I have spent 35 years in cinema and television. Whereas in BJP, I have spent 10 years. Of course, BJP is my ideology today. And I agree with the ideology completely.
और हर आदमी की अपनी आइडियोलॉजी इंडिविजुअल हो सकती है। मैं उसको तो चैलेंज ही नहीं कर रहा। जी। बिल्कुल, आप यूर एंटाइटल्ड टू हैव योर ओन आइडियोलॉजी, होनी चाहिए आइडियोलॉजी। एक हर किसी का अपना पॉलिटिकल अस्तित्व होता है, पॉलिटिकल व्यूज होते हैं, लेकिन आपकी जो आइडियोलॉजी है और जिस पार्टी को आप रिप्रेजेंट करते हैं उनकी जो आइडियोलॉजी है, बतौर एफटीआई चेयरमैन, इज दैट आइडियोलॉजी गोइंग टू हैव एनी रोल? क्या वो आइडियोलॉजी कहीं आपके काम काज के तरीके में कहीं दिखेगी क्या हमें? मेरे 34 साल के कैरियर में मैंने वो आइडियोलॉजी बीच में नहीं आने दी आज तक सिनेमा में, तो मैं एफटीआई की फंक्शनिंग में कैसे आने दूंगा? मैं एफटीआई जा रहा हूं अपने किसी पर्पज से कि मैं सिनेमा को प्यार करता हूं, एक प्रीमियर इंस्टीट्यूशन है, मुझे एक जिम्मेदारी दी गई है, मैं उस जिम्मेदारी का वहां जो इतना सारा काम पेंडिंग है बहुत सालों से, मैं उसकी लिस्ट दे सकता हूं। नहीं, मैं भी देख रहा हूं। एक आपको शायद पता भी होगा कि एक नायर कमीशन रिपोर्ट एक जो है कि बनी थी 2011 में। इट्स अ वेरी गुड 33 पेज रिपोर्ट। उसमें बड़े स्पष्ट कुछ सुझाव भी दिए हुए हैं, जिनमें खास तौर पर जो कैंपस का जो एनवायरनमेंट है, जो बेसिक फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर है, एरिफ्लेक्स कैमरास खरीदने की बात की गई है, बेसिक जेनसेट, बेसिक एक जनरेटर जो होता है शूटिंग करने के लिए, उसको खरीदने की बात की गई है। क्या आप इन सब चीजों के ऊपर आपका ध्यान है? देखिए, ऐसा है, मैं एग्जामिनेशन हॉल में गया नहीं और आप मुझसे क्वेश्चन करके उसका आंसर जानना चाह रहे हैं। मैं स्टूडेंट्स जानना चाहते हैं। मैं स्टूडेंट्स को बता रहा हूं जो कि स्ट्राइक पे हैं आपके खिलाफ। मेरे खिलाफ भी हैं उनके। देखिए, पहले दिन से जो प्रोटेस्ट शुरू हुए हैं मेरे खिलाफ हुए, डेफिनेटली मैं मानता हूं, लेकिन मुझे उसका कारण समझ में नहीं आया। एक आदमी की परफॉर्मेंस शुरू नहीं और आपने प्रोटेस्ट शुरू कर दिया। दूसरा, वो प्रोटेस्ट धीरे धीरे शिफ्ट हो गया बाकी लोगों पे। उसके बाद वो तीसरी बार शिफ्ट हो गया सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के ऊपर। तो जब प्रोटेस्ट शिफ्ट हो रहा है, अब ये 3 मुद्दे हैं उनके पास में। इसी दौरान सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने उनके साथ मीटिंग अरेंज की, आपको पता है। अब उस मीटिंग का क्या आउटकम होता है उसके बाद सोचा जाएगा कि कैसे आगे बढ़ना है। यू नॉट वरीड? आपको डर तो नहीं कहीं? नहीं, ऐसा ना हो कहीं कि अभी जो आपको जो नियुक्ति पत्र आपको जो दिया गया है, कहीं वो नियुक्ति पत्र वापस न ले लिया जाए? मैं मोदी सरकार का और भारत सरकार का हमेशा से सम्मान करता रहा हूं और करता रहूंगा। जो भी आदेश होगा मेरे सर माथे पर, लेकिन ऐसा होगा नहीं। रेजिग्नेशन का सवाल नहीं आपके रेजिग्नेशन नहीं होगा, वो नहीं होगा। आप एकदम आश्वस्त हैं उस बात को लेकर। लेकिन जो बच्चे जो देखिए जो स्ट्राइक पर हैं, मैंने बड़े एलुमनाई एसोसिएशन के लोगों से भी मैंने काफी चर्चा की, उन सबका ये कहना है कि दरअसल सिनेमा तो एक लिबरल आर्ट्स है। यू सी, द जॉब ऑफ सिनेमा इन एनी सोसाइटी इज टू कॉन्स्टेंटली एंगेज विद कॉन्फ्लिक्ट। लोगों को डर है कि कहीं ना कहीं जो सिनेमा की एबिलिटी थी टू एंगेज विद कॉन्फ्लिक्ट, उसके ऊपर गजेंद्र चौहान एक प्रहरी की तरह, एक पहरेदार जो होता है, उस तरीके से उनको बिठाया जा रहा है। देखिए, कुछ भी होने से पहले कुछ भी प्रिज्यूम कर लेना, वो मुझे लगता है कि इतने सुलझे हुए और इतने प्रीमियर इंस्टीट्यूशन से पढ़े हुए एलुमनाई लोगों के लिए ठीक नहीं है। वहां के कुछ लोगों ने मुझे सपोर्ट भी किया है बहुत अच्छे से, और उन्होंने ये कहा है कि लेट हिम परफॉर्म। एक आदमी की परफॉर्मेंस, सी आई हैव ए राइट ऑफ परफॉर्मेंस। जब तक मैं परफॉर्म नहीं करूं, हो सकता है मैं गलत करूं, हो सकता है मेरे से ठीक ना हो, आई एग्री, लेकिन मैं उन लोगों में से हूं कि अगर मेरे से परफॉर्मेंस नहीं होगी और मुझे लगेगा किसी दिन कि मैं इस काबिल नहीं रहा, तो मैं अपने आप स्टेप डाउन करके चलाऊं। लेकिन मुझे बताइए गजेंद्र जी, आप कह रहे हैं कि उसमें एक और चीज मैं ऐड करना चाहूंगा कि ऐसा दिन आएगा नहीं। स्वागत है, आप हॉट सीट देख रहे हैं और आज हमारे साथ गजेंद्र चौहान जी हैं, जो कि फिल्म इंस्टीट्यूट के अभी गवर्निंग काउंसिल के चेयरमैन बनाए गए हैं। आपको नहीं लगता कि जब हम बात एजुकेशन की कर रहे हैं और बात सिनेमा की एजुकेशन की कर रहे हैं, क्या बेहतर नहीं होगा कि जो स्टेक होल्डर्स होते हैं इंडस्ट्री के, क्या उन सारे स्टेक होल्डर्स को इन्वॉल्व करने की जरूरत नहीं है? जैसे ग्लोबली होता है, न्यूयॉर्क फिल्म स्कूल है, आप यूरोप में देखें, आप मॉस्को में देखें, आप रशियन जो फिल्म स्कूल्स हैं वहां पर देखिए, मैं सरकार को किसी पहरेदार को बैठाने की क्या जरूरत है? ये सरकार का काम है, इस पे मैं कमेंट नहीं करता। नहीं, आप बताओ, आप सिनेमा मैन, तो आप मुझे बता। मैं सिनेमा मैन हूं, लेकिन आज तक जो अधिकार क्षेत्र रहा है ये सरकार का रहा है। आज से पहले ये सवाल क्यों नहीं उठा? आज ये पहली बार ये सवाल क्यों? नहीं, ये सवाल तो बहुत वर्षों से वैसे उठ रहा है। 71 से चल रहा है ये सवाल। 73 और 82 में बहुत बड़ा, आपको मालूम है वहाँ की जो सोसाइटी जब बनी थी उसमें क्या हंगामा हुआ था। वहाँ की आज तक पेंशन नहीं मिली है लोगों को। उसके बाद फैकल्टी में जो पे स्केल है उसमें कितना डिफरेंस है बाहर और यहाँ के, बहुत सारी बातें हैं। लेकिन अगर 97 से ये जोर पकड़ा तो ये आज तक हुआ क्यों नहीं? पिछली सरकार ने क्यों नहीं किया? अगर आपको कोई ये कहे कि एक बेहतर एक बड़ी बॉडी बनाई जाए जिसमें 1500 से 1600 लोग जो कि इंडस्ट्री के हैं, जाने माने नाम, डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, स्क्रिप्ट राइटर, साउंड इंजीनियर जितने हैं, उन सब लोगों को जोड़ा जाए और वो सब लोग मिलकर एक चेयरमैन। देखिए, ये तो भविष्य की बात कर रहे हैं, मैं अभी वर्तमान की बात कर रहा हूं। वर्तमान में ये अधिकार क्षेत्र सरकार के पास है। बट वुड यू सपोर्ट समथिंग लाइक दिस? डू यू नॉट थिंक कि बेस्ट थिंग वुड बी कि एक डेमोक्रेटिक एक्सरसाइज हो जाए पूरी?
ये बहुत अच्छा आइडिया है, लेकिन सरकार इसके बारे में क्या सोचती है ये सरकार बता सकती गजेंद्र चौहान जी क्या सोचते हैं? है। मैं डेफिनेटली सोचता हूं होना चाहिए सर। होना चाहिए, आप इसको सपोर्ट करेंगे, राइट? अब मुझे ये बताइए आप सर अंत में कि बड़े जो फिल्म इंस्टीट्यूट के जो बड़े बच्चे जिनसे मैं बात कर रहा हूं वो कह रहे हैं कि दरअसल गजेंद्र चौहान जी हम लोगों को पीके टाइप की फिल्म्स नहीं बनाने देंगे। बड़ा क्रिटिसिज्म हुआ हाँ? कि उसमें कहीं लेट मी पुट इट दिस वे कि सपोज कल की डेट में मान लीजिए कोई कम्युनल राइट्स पे कोई फिल्म बनाना चाहता है, स्टूडेंट डिप्लोमा फिल्म बनाना चाहता बना सकता है, बनाने देंगे आप उसको, उसके ऊपर किसी किस्म की सेंसरशिप? देखिए कोई भी चीज, मैंने कहा फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन सबको है, आर्ट के ऊपर कोई लागू नहीं होता है, लेकिन आपको लिमिट क्रॉस नहीं कर सकते आप। ये लिमिट कौन डिसाइड करेगा? ये नहीं, ये लिमिट तो सेंसर बोर्ड डिसाइड करता है ना इस देश में। नहीं, मैं तो सिर्फ स्टूडेंट फिल्म की बात डिप्लोमा की फिल्म कर रहे हैं ना, हाँ, वो बना सकते हैं, बना सकते हैं। सो लेट्स से फिल्म्स ऑन गे राइट्स, फिल्म्स ऑन कम्युनल टेंशन, लीगली अगर वो वैलिड है इस देश में, जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया है, तो बना सकता है वो। उसमें गजेंद्र चौहान जी कहीं बिल्कुल। तो वो लोग जो कि इस इंटरव्यू को देख रहे होंगे सर, आप उनको क्या कहेंगे कि गजेंद्र चौहान के ऊपर भरोसा क्यों किया जाए? फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन पे कोई बंदिश नहीं होगी गजेंद्र चौहान की तरफ से, कोई बंदिश नहीं होगी, ये आपका एकदम कमिटमेंट है आपका। मतलब ये जो आरोप आपके ऊपर लग रहे हैं कि आप एक पहरेदार की तरह बिठाए जा रहे हैं, आरोप और आप वेस्टेड इंटरेस्ट को प्रमोट करेंगे, संघ परिवार की जो आइडियोलॉजी है उसको एफटीआई के बैनर के थ्रू प्रमोट करेंगे, गलत है? मेरी आइडियोलॉजी मुझ तक सीमित है, वो कहीं भी सिनेमा या एफटीआई के ऊपर लागू नहीं होगी। तो ये बच्चे जो आज की डेट में जो स्ट्राइक पर हैं, आप उनको क्या कहेंगे? मैं यही कह सकता हूं कि हमको सबको मिलकर अगर काम करना है तो विचारधारा तो बाहर रहेगी, लेकिन हमको एफटीआई के लिए काम करना है। आप जो जबरदस्ती प्री कंडीशन माइंड से आपने प्री कंसीव नोशंस जो कर लिए हैं, प्री डिटरमिन्ड माइंड है आपका कि गजेंद्र चौहान ऐसा है बिकॉज उसकी एसोसिएशन एक विचारधारा से है। लेकिन आई एम ए फर्स्ट सिनेमा मैन देन ए बीजेपी मैन। You are first a cinema man, then a BJP man. then a BJP man. 34 years in cinema, 10 years in BJP. And despite people who question your cinema lineage in a sense, जो लोगों को लगता है कि आपने तो सिनेमा में आपने कोई बड़ा कोई शानदार कुछ काम ऐसा किया नहीं। देखिए ऐसा है कि ये जगह दे दी गई। बहुत सारे लोगों को ये भी पता होना चाहिए कि बिना किसी गॉडफादर के मैंने अपना कैरियर बनाया है। यहाँ सर्वाइव करना, इस ओपन ग्राउंड में चैलेंजेस लेना और यहाँ आके महाभारत जैसा एक सीरियल करना। महाभारत के विषय में आपको यह भी बता दूं कि 94 आवर्स ऑफ सिनेमा है वो, इट्स नॉट ए स्मॉल थिंग। अगले 100 साल में भी शायद महाभारत दोबारा नहीं बनेगा, जैसे कुछ लोगों ने लेकिन 94 आवर्स अगर एक फिल्म 3 घंटे की हो तो 32 फिल्में एक साथ हो गई मिस्टर B.R. चोपड़ा। अंत में मैं आपसे दोबारा से मैं पूछूंगा सर कि जितने लोग जो इस वक्त स्ट्राइक पर हैं फिल्म इंस्टीट्यूट में, वो लोग जो आपका इंटरव्यू देख रहे होंगे, आप उनको ऐसा एक क्या कहेंगे, क्या संदेश देंगे ताकि उनका भरोसा आपके ऊपर बढ़े? मैं एक ही बात कह सकता हूं, लेट मी वर्क, आई विल चेंज योर ओपिनियन विद इन 1 ईयर। विद इन 1 ईयर, 1 साल का आपने अपने आप को टाइम दिया। चौहान साहब, आपने हमारे सभी सवालों का जवाब दिया। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू वेरी मच।